أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ساری تعریفیں اور برائیاں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ہماری عزت کا سامان فراہم کیا اور ہماری اخروی زندگی کامیاب و بامراد بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں پے در پہ مبعوث فرمایا، اور ہم اس لحاظ سے خوش نصیب و خوش قسمت ہیں کہ نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزارہا لکھوں کہا کروڑہا انگنت درود و سلام نازل ہو کہ اللہ نے ہمیں آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا، جسے خیر الامم کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ آج عربی تاریخ کے حساب سے شعبان کی 15 تاریخ ہے، عیسوی مہینے کے اعتبار سے فروری کی 14 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس منبر رسول سے مہینوں کی مناسبت سے، دنوں کی مناسبت سے، ایام کی مناسبت سے اور مختلف اوقات کی مناسبت سے باتیں یہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔ کن مہینوں کی کیا خصوصیات ہیں، کن مہینوں کے کیا فضائل ہیں جو صحیح حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور کون کون سی بدعتیں ہیں جو ہمارے اسلامی سماج کے اندر دبے پاؤ داخل ہو گئی ہیں، تو اس منبر رسول سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ آج کے اس نشست میں میرا دونوں موضوع ہے، 15 شعبان کا بھی اور 14 فروری کا بھی، اسی لیے میں نے مؤذن صاحب سے کہہ کر کے 5 منٹ پہلے اذان دلوائی ہے کہ دونوں موضوع پر تھوڑی تھوڑی روشنی میں ڈال سکوں۔ 15 شعبان رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت اور خاص شرف بیان کیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو جو خطیب تھے ان کی زبان سے آپ نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ احادیث، صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا۔ آج کے اس خطبے میں خاص طور سے 15 شعبان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص 15 شعبان کے تعلق سے ہمارے اس شریعت میں دین کے نام پر جو بدعات و خرافات شامل ہو گئی ہیں، انہیں دین کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور لوگ دین سمجھ کر کے اس پر بے دریغ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث خاص طور سے بیان کی جاتی ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو مجھے تشویش ہوئی، میں آپ کی تلاش میں نکلی، اور اس کے بعد آپ کی تلاش میں جب میں نکل کر کے آگے بڑھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی طرف سے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ میں پریشان تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پا کر کے مجھے کچھ تشویش اور فکر لاحق ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات گھر کے باہر، حجرے کے باہر ہوئی۔ گھر کیا تھا؟ مسجد نبوی کا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اور جو لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بہت قریب بغل میں قبرستان بقیع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا، عائشہ تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنے والا ہوں، تمہارے دل میں کیا خیال پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صحیح بات یہ ہے
कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि कहीं आप किसी दूसरी बीवी के घर न तशरीफ ले गए हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा जुल्म हरगिज नहीं कर सकता हूँ। हमारे और आपके दिलों की तरह से, हमारे और आपकी तरह से उनके दिलों में मुनाफिकत नहीं थी। जो बात उनके दिल में आई, जो खदशा उनके दिल में पैदा हुआ, उन्होंने बरमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया। तो 15 शाबान की वो रात थी एक रिवायत के मुताबिक, और बहुत से मुहद्दिसीन ने बताया है कि ये रिवायत भी ज़ईफ है। जो सबसे मजबूत रिवायत बयान की जाती है उसमें भी किसी न किसी हद तक ज़ोफ है। और ये हिस्सा कि जिसमें ये कहा गया है कि वो 15 शाबान की रात थी, इसको कई मुहद्दिसीन ने हज़फ किया है और कहा है कि कोई भी रात हो सकती थी। इस हद तक ये वाकया दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक से उठ करके बकी कब्रस्तान की तरफ तशरीफ ले गए, लेकिन उसके बाद ये कि वो 15 शाबान की तारीख है, ये जरूरी नहीं है। कब्रस्तान की ज़ियारत और कब्रस्तान में हाजिर होना ये कोई ना तो मायूब बात है और ना इसमें किसी ताज्जुब की बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस्तान में की ज़ियारत का हुक्म दिया है और आपने कहा है कि कब्रों की ज़ियारत करो। वजह अलग बयान की है, लोग उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। आपने वजह भी बयान कर दिया है कि मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। इन्नी नहायतुकुम ज़ियारतल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा। हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। इसमें बहुत सी बिदअत और बहुत से शिरकिया अमाल का खदशा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कब्रस्तान में जाकर के मुर्दों से कोई मुराद ना मांगने लगे या कोई खिलाफे सुन्नत कोई काम ना करने लगे, बिदअत और खुराफात ना करने लगे। तो आपने मना कर दिया था पहले, लेकिन फिर इजाजत दी और कहा कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन उसकी ज़ियारत करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत से, कब्रस्तान में आने जाने से आदमी को आखिरत की याद आती है और अज़ाब कब्र की याद आती है कि एक दिन हमको भी यहीं पर आना है। तो इस हद तक जो आपने वजह बयान की है वो बहुत सही है और इसमें किसी तरह का कोई कलाम नहीं है कि ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन कब्रस्तान में जाना, तरह तरह की बिदअत और खुराफात का इर्तिकाब करना, कब्रों पे चादर चढ़ाना, कब्रों से मिन्नतें और मुरादें मांगना और असहाब कुबूर के साथ, अहलुल कुबूर के साथ जो कब्र में दफन है उनके साथ कुछ ऐसी अकीदत का मुजाहरा करना जिसकी इस्लाम ने और शरा ने इजाजत नहीं दी है, तो ये चीज किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। ये कोई खास 15 शाबान की रात की बात नहीं है, बल्कि ये किसी भी दिन और दिन के वक्त में या रात के वक्त में आदमी को कब्रस्तान जाना चाहिए। किसी की तदफीन का मौका ना भी हो तो वैसे ही कब्रस्तान जाना चाहिए और अपने मुर्दों के लिए, मैयतों के लिए इसाले सवाब भी करना चाहिए। और उसके बाद कुछ ना हो तो कम से कम वहां जाकर के सलाम करना चाहिए और उसके बाद इस कब्रों की हाजिरी और कब्रस्तान की हाजिरी से आखिरत की याद आती है, ये करना चाहिए। लेकिन अब आज हो क्या रहा है कि कब्रस्तान में चिरागा किया जाता है, रोशनी का एहतमाम किया जाता है और बहुत तरह के सफाई सुथराई से लेकर के हलवा, मिठाइयाँ और पूरियाँ और अनवा अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं घरों के अंदर। और उसके बाद ये अकीदा रखा जाता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे अक़रबा की रूहें हमारे घर में आएंगी, हमारे अक़रबा की रूहें हमारे घर में आएंगी और उनके लिए हम अनवा अक़साम के और उनके पसंदीदा खाने तैयार करेंगे और वो उन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होंगी। ये इंतहाई शिरकिया अक़ीदा है, ये कोई बिदात भी नहीं है, बिदात से आगे की चीज है, ये शिर्क व कुफ्र है। ये अक़ीदा रखना कि हमारे रिश्तेदारों की, हमारे अक़रबा की, हमारे अजदाद की रूहें हमारे घरों में आएंगी, तो ये एक शिरकिया अक़ीदा है, ये गैर मुस्लिमों का अक़ीदा है, ये हिंदुओं का अक़ीदा है।
तो मुसलमानों की रूहें इधर उधर भटकती नहीं है। जो नेक लोग हैं उनकी रूहें सिज्जीन में रखी जाती, जो नेक लोग हैं उनकी रूहें इल्लीन में रखी जाती हैं। जो बुरे लोग बदकार लोग हैं उनकी रूहें सिज्जीन में रखी जाती हैं। जिन रूहों को सिज्जीन में रखा जाता है उनको ऐसा जकड़ करके जंजीरों में रखा जाता है कि वो वहां से निकलने की ताब और मजाल उनके अंदर नहीं होती है। और जिनको इल्लीन में रखा जाता है वो जन्नत के अनवा व अक़साम की नेमतों से उनकी रूहें लुत्फ़अंदोज़ हो रही होती हैं। उनकी रूहें जन्नत के मेवों से, वहां की खुशबुओं से और वहां के तरह तरह के मेवाजात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही होती है। तो उन नेमतों को छोड़ करके तुम्हारा यह सड़ा हुआ हलवा खाने के लिए तुम्हारे घर में रूहें क्यों आएंगी? और ये आना, ये तसव्वुर रखना, ये अकीदा रखना, ये सरासर कुफ्र और शिर्क है कि किसी की रूह एक बार जब चली जाती है तो वो बरज़ख तक, क़यामत के कायम होने तक कभी नहीं निकलती वहां से। क़यामत जब कायम होगी तो आदमी के जिस्म में रूह लौटाई जाएगी, कब्र और हाजिरी होगी, अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब होगा। ये इस्लामी अकीदा है। और रूहों का इधर उधर आना और जाना, चहलकदमी करना और भटकना, ये इस्लामी अकीदा नहीं है, यह हिंदुआना तसव्वुर है। तो हमारे कुछ भाई लोग जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं और समझते हैं, ये अकीदा भी रखते हैं कि रूहें उनके घरों में आती हैं, घरों को सजाते हैं, खुशबुओं से उसको सजाते हैं और खुशबुओं से उनको घरों की हर तरह की सजावट करते हैं। उसके अलावा अनवा अक़साम के खाने तैयार करते हैं। तो ये चीज किसी भी तरह से इस्लामी तसव्वुर नहीं है। और फिर ये सारी चीजें आदमी कभी भी अपने घर में हलवा मिठाई बनाए, कभी भी अपने घर में बिरयानी तैयार करे, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन ये तसव्वुर रखना कि ये इसका मकसद क्या है और ये तसव्वुर रखना कि इसमें बहुत बड़ा सवाब है, यही चीज इसको खिलाफ शरीयत और खिलाफ इस्लाम करार देती है। उसके बाद एक चीज भाई लोगों ने एक चीज ये इजाद कर रखी है, ये तसव्वुर अपने आप से कायम कर रखा है। हलवा बनाते हैं बड़े मजेदार और मुलायम और कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए थे, तो आप कोई सख्त चीज नहीं खा सकते थे, तो इसलिए हम हलवा पकाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन हलवा खाया था, इसलिए हम भी हलवा खाते हैं। अरे ये हलवा खोरो, पहले तारीख तो पढ़ लो, तारीख का मुताला तो कर लो कि ग़ज़वे उहद किस सन में पेश आया था, ग़ज़वे उहद किस महीने में पेश आया था। ये सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए थे। एक काफिर ने, एक मुशरिक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वार किया, आपकी खोद की दो कड़ियां आपके पेशानी में चुभ गई, खोद की दो कड़ियां घुस गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के दो दांत शहीद हो गए। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खोद की कड़ियां हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने निकाली और आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए। तो इस खुशी में हलवा खाते हैं, ये खुशी की बात ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए तो इस पर खुशी मनाने का मौका है। और अगर ये कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, यानी आपका तरीका था कि आपने हलवा खाया तो हम भी खाते हैं, तो पहले तारीख तो पढ़ लो। ग़ज़वे उहद शव्वाल सन 3 हिजरी में पेश आया था। शव्वाल सन 3 हिजरी में महीना शव्वाल का था, हलवा शाबान में खाते हो। शव्वाल का महीना हलवा शाबान में खाते हो, पेशगी खाते हो, उसके बाद शाबान के बाद रमजान, रमजान के बाद शव्वाल, उसके अगले तीसरे महीने में दांत शहीद हुआ शव्वाल में और हलवा खाना शुरू कर दिया तुमने शाबान में, यानी 3 महीने पहले ही दांत के शहीद होने से पहले। और अगर तुम ये समझते हो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो कितनी सुन्नतों पर अमल किया। एक लतीफे के तौर पर यह बात कही जाती है कि एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा कि आप गोश्त खाते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे गोश्त बहुत पसंद है क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त पसंद था। आप हलवा खाते हैं? यकीनन खाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बहुत मरगूब था।
उस आदमी ने एक चुभता हुआ सवाल कर लिया कि आपने कभी पेट पर पत्थर बांधा है? तो कहा माअज़ल्लाह, क्या बिल्कुल ही रसूल हो जाऊं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखिए कि आपने किस तरह से दुश्मनों के खिलाफ जिहाद किया, किस तरह से तकलीफ उठाई। आपने पेट पर पत्थर भी बांधा जंगे खंदक के मौके पर, गज़वे खंदक में खंदक की खुदाई के मौके पर आपने भूख की शिद्दत से बेहाल होकर के अपने पेट पर पत्थर बांधा। हमने कितने वक्त का फाका किया है। और आपने ताइफ में काफिरों के हाथों पत्थर खाए, जख्म से, चेहरे से जख्म, सर से जख्म खून निकल करके आपके पीठ से होते हुए जूतों की एड़ियों में जाकर के जम गया। तो ये तकलीफ हमने कभी दीन के रास्ते में, तबलीग के रास्ते में, दावत के रास्ते में कभी ये तकलीफ हमने उठाई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हिफाजत के लिए जिस शुजाअत का, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, कभी हमने दीन के लिए इस बहादुरी का मुजाहरा किया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए काफिरों की तरफ से कितनी ईज़ाएं और कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। शोबे अबी तालिब में 3 साल तक आप मासूर रहे और बच्चे भूख से तड़पते थे और जानवरों के जो दरख्तों की छाल और दरख्तों के जड़ें उबाल उबाल करके खाते थे, उनके भूख से बेचैन रहते थे। कभी आपने अपने बच्चों को इस भूख की शिद्दत का एहसास कराया? तब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद नहीं आई, और याद तब आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। तो हम फिर उसके बदले में हम भी रोजा ये हलवा बना करके खाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया था। न तो वो तारीख में कहीं फिट होता है, इनका ये अफसाना इस्लामी तारीख में कहीं फिट नहीं होता है, और इस्लामी शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हलवा घर घर बन रहा है और उसको दीन समझ रहे हैं, इसको सुन्नत समझ रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज ईजाद कर दी जिस पर हमारी मुहर लगी हुई नहीं है, उसके मुंह पर मार दी जाएगी। ये हलवा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर इसको दीन समझ करके तुम खा रहे हो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके खा रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का एहसास समझ करके खा रहे हो, तो क़यामत के दिन तुम्हारा इस हलवे के साथ क्या हशर होगा, ये तुम अपनी फिक्र कर लो। तो हमारे जो भाई ऐसा करते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि इस्लामी शरीयत से इन सब खुराफात का, इन सब बिदआत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुछ चीजें, कुछ हदीसें इस सिलसिले में, यानी शाबान की फजीलत के सिलसिले में सही भी हैं। उनमें से यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखा करते थे। अगर किसी की आदत है कि अय्यामे बीज में वो रोजा रखता है, यानी चाँद की 13वीं 14वीं 15वीं रात को वो रोजा रखता है कि दिन वो रोजा रखता है, तो यकीनन रोजा रखे। और पूरे महीने को छोड़ करके सिर्फ 15 शाबान को रोजा रखना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजा आप शाबान में रखते थे। ये बात अपनी जगह पर साबित है, सही हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजा अगर किसी महीने में रखते थे तो शाबान में। हमने 1 2 3 5 शाबान को रोजा रखा। कितने भाइयों ने एक रमजान से लेकर, एक शाबान से लेकर के 15 शाबान तक रोजा रखा? सारे महीने के दिनों को छोड़ करके सिर्फ 15 शाबान को रोजा रखा जाए, ये कहां से जायज है? ये शरीयत हमने कहां से निकाल ली है और कहां से इसकी फजीलत समझ ली है? अच्छे अच्छे देवबंदी घरानों में ये तसव्वुर पाया जाता है कि 15 शाबान को रोजा, रात को जागना, रात को शब्देदारी करना, रात को कुरान की तिलावत करना और दिन में रोजा रखना बड़ा कार्य सवाब है। मैं अहले बिदात की बात नहीं करता हूं जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, हालांकि अहले सुन्नत सबसे ज्यादा अहले बिदात ही अपने आप को कहते हैं। लेकिन देवबंदी हजरात जो ये समझते हैं कि वो बिदात और खुराफात से बहुत दूर हैं, वो 15 शाबान की रात को जागना और इबादत करना और दिन में रोजा रखना, इसको बहुत बड़ा कार्य सवाब समझते हैं। मैंने खुद इसका तजर्बा किया है। मैं जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा में ज़ेरे तालीम था
तो असातिज़ा कहते थे कि बच्चों कल 15 शाबान है, जिससे हो सके वो 15 शाबान का रोजा रखे और रात को जागे, कुरान की तिलावत करे और नवाफिल पढ़े। ज़माने तालिब इल्मी में जब मेरा मुताला नहीं था तो मैंने इसको कार सवाब समझ करके इस पर अमल किया। हालांकि किसी भी इबादत के लिए कोई दिन खास कर लेना, कोई वक्त खास कर लेना, और जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये चीज उस इबादत को मरदूद करती है, बल्कि उसको बिदात में तब्दील कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक आदमी ईदगाह में, लोग नमाज के लिए इकट्ठा थे। नमाज बहुत ज्यादा सवाब का काम है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। तो लोग ईदगाह में जमा थे। खुतबा शुरू होने में, ईद की नमाज शुरू होने में कुछ ताखीर थी, लोगों का इंतजार हो रहा था, वक्त नहीं हुआ था। एक आदमी ने नफिल की नीयत बांध ली। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसको मना किया और कहा बैठ जाओ। उसके बाद वो नहीं बैठा, किसी न किसी तरह से नमाज पूरी कर ली। हजरत अली ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि तुमने ये 2 रकात नमाज पढ़ के बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या नमाज पढ़ने से भी गुनाह होता है? कहा तुम्हें नमाज पढ़ने का गुनाह नहीं होगा, नमाज तो बहुत सवाब का काम है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करने का गुनाह तुम्हारे सर पर लादा जाएगा। क्योंकि कभी भी ईदगाह में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद की दोगाना जो नमाज है उससे पहले कभी कोई नफिल नमाज पढ़ते हुए नहीं पाया है। तो ना नमाज पढ़ने का गुनाह नहीं होगा, नमाज गैर वक्त में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को के खिलाफ करने का गुनाह तुम्हें होगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। एक आदमी, हजरत सईद इब्न मुसय्यब एक बड़े ताबई हैं, बड़े पाए के ताबई हैं, बल्कि सैयदुत ताबईन कहा जाता है। उनके जमाने में अब शरीयत यह है कि फजर के अजान के बाद 2 रकात सुन्नत के अलावा कोई और नफिल नमाज नहीं है। तो एक आदमी ने 2 रकात नमाज पढ़ ली सुन्नत, जो फजर की सुन्नत जो सबसे अहम है, सारी सुन्नतों में सबसे अहम फजर की सुन्नत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मगरिब के बाद वाली सुन्नत है। तो उसने 2 रकात सुन्नत पढ़ ली। हजरत सईद इब्न मुसय्यब देखते रहे, लेकिन फिर नियत उसने बांध ली। तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब ने कहा बैठ जाओ, मजीद नमाज ना पढ़ो। और उसके बाद वो नहीं माना, नमाज पढ़ ली और सलाम फेर दिया। फिर अगली नमाज की नियत बांध ली। उन्होंने पूरी ताकत से उसका कपड़ा खींच करके और उसका कुर्ता खींच करके जबरदस्ती बिठाया। तो कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। कहा तुमने ये जो 2 रकात नमाज पढ़ ली, नमाज में मैंने खलल नहीं डाला, लेकिन ये भी गलत किया, और इसके बाद जो पढ़ रहे हो नमाज वो गलत कर रहे हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की अजान के बाद जमात और अजान के दरमियान 2 रकात से ज्यादा कभी कोई और नमाज नहीं पढ़ी है। तो नमाज भी गलत वक्त में पढ़ी जाए तो बजाय सवाब के गुनाह का मूजिब हो जाती है। और हम तरह तरह का काम कर रहे हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्रिस्तान में जाओ कि वो आखिरत की याद दिलाती है, ऐसे जाया जाता है। चिरागा किया जाता है, कुमकुमे जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है और खुशबुएं छोड़ी जाती हैं, धुनी दी जाती है और कब्रिस्तान को आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। इससे आखिरत की याद आएगी? इससे आखिरत की याद आएगी इस अंदाज में कब्रिस्तान जाने से? बल्कि ये तो आखिरत को और भुला देगी और दुनिया में आदमी मस्त व मगन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें शरीयत से जिन चीजों का ताल्लुक है उसको याद रखना चाहिए। दूसरा मौजू मेरा ये था कि आज 14 फरवरी है। हमारे नौजवान खासतौर से जो आसरी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और दीनी तालीम जिनकी नहीं है और असरी स्कूलों और कॉलेजों की ही तालीम है, दीन से ताल्लुक नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दीनी तालीम बहुत जरूरी है। तो दीन की तालीम नहीं है तो वो जानते हैं कि एक दिन आता है, वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर है, वो 14 फरवरी का दिन है। 14 फरवरी की तारीख है। हमारे मुसलमान बच्चे
दीनी मकातिब में, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे शायद इससे वाकिफ ना हो, और ये बहुत बड़ी नेमत है उनके लिए कि इन खुराफात को और मगरबी तहजीब के असरात को वो नहीं जानते हैं। ना जानना बहुत बड़ा, ये ना जानना बहुत बड़ा इनके साथ इनाम है एक तरह से। तो जो बच्चे असरी स्कूलों में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक दिन साल का वैलेंटाइन डे आता है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें स्कूलों में छुट्टी होती है या नहीं होती है, मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं होती है, लेकिन उसको यौम मोहब्बत के नाम से मनाया जाता है। नौजवान लड़के और लड़कियां गैर महरम, एक दूसरे के लिए अजनबी, वो तन्हाई में मिलते हैं, एक दूसरों के साथ फूलों का गुलदस्ता एक दूसरे को पेश करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, वैलेंटाइन कार्डों का तबादला करते हैं और हर वो काम करते हैं जिनका दीन तो दूर की बात है, जिनका तहजीब और शराफत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। यूरोप की तहजीब ने, मगरबी तहजीब ने हमारे इस्लामी समाज के अंदर वो जहर घोल दिया है और इस तरह से अपने तहजीब के असरात और अपने तहजीब के नुकूश छोड़ दिए हैं कि हम दीन को भूल गए हैं, दीनी तालीमात को फरामोश कर बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है दीन का क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, हमारे दीन में हया की पासदारी है, शर्म हया है, पाकीज़गी है, इफ्फत है, तहारत है और इस तरह की चीजें हैं कि जिनसे आदमी का इखलाक महफूज रहता है, आदमी की शराफत की जमानत दी जा सकती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि हया ईमान का हिस्सा है, शर्म हया ईमान का हिस्सा है। नौजवान लड़के और लड़कियां पार्कों में, तफरीह गाहों में एक दूसरे के साथ मुलाकातें करते हैं, तन्हाई में भी और लोगों की भीड़ भाड़ में भी, जबकि तन्हाई में एक अजनबी मर्द और औरत का मिलना, एक नौजवान लड़के और लड़की का मुलाकात करना शरअन हराम और नाजायज है और इस तरह के तोहफा तहाइफ का, कार्डों का तबादला बिल्कुल हराम है। और इसकी जो बुनियाद है वो भी हुर्मत पर है, वो भी बेहयाई पर है, वो फहाशी के ऊपर है। इसमें बहुत से वाकयात बताए जाते हैं, बहुत से असबाब बताए जाते हैं, उसमें से एक ये है, मुख्तसरन मैं बताता हूं, वह खत्म हो गया। वैलेंटाइन के नाम से एक ईसाई पादरी था रोम में, इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से भी कई सौ साल पहले से ये चला रहा है। तो रोम में एक जो बादशाह था वो अपनी फौज बहुत लंबी चौड़ी बनाना चाहता था और फौज की सिपाहियों की तादाद बढ़ाना चाहता था। तो लोग जब फौज में जाते थे, उनकी बीवियां होती थी, बच्चे होते थे, उनकी याद आती थी, तो उसके बाद वो फौज में ज्यादा दिन रुकते नहीं थे और वहां से अपने घर की याद आती थी तो वापस आ जाते थे। तो उसने एक कानून बनाया कि अब किसी भी फौजी को शादी करने की इजाजत नहीं है। उस अपने पूरे मुल्क में उसने खिलाफ फितरत ये ऐलान कर दिया कि हमारी हुकूमत में किसी भी नौजवान को शादी करने की इजाजत नहीं है। एक पादरी ने, वैलेंटाइन नाम के एक पादरी ने चोरी छुपे शादी कर ली। बादशाह को पता चला, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया और उसके बाद जेल में जो जेलर था उसकी एक लड़की उसके लिए खाना लेकर के जाती थी और उससे उसकी निगाहें चार हो गईं और वहां पर उसने बदकारी का इर्तिकाब किया। इसी 14 फरवरी के तारीख को उसको इस बदकारी के जुर्म में जो उसने जेलर की लड़की के साथ किया था उसको फांसी दे दी गई। अब ये कबीह काम उसने किया, एक इंतहाई घिनौनी हरकत की, गिरी हुई हरकत की, तो उसके ऊपर तो लानत भेजना चाहिए। उसकी यादगारें मना रहे हो, तुम्हारी अकल कहां चली गई है। अल्लामा इकबाल ने कहा था फसाद कल्ब व नजर है फरंग की तहजीब की रूह इस मदनियत की रह सकी ना आफीब, रहे न रूह में पाकीज़गी तो है नापीब, ज़मीरे पाको ख्याले बुलंद व ज़ौक़े लतीफ़। ज़मीर पाक कहां से पैदा होगा, ख्याल बुलंद कहां से पैदा होगा, ज़ौक़ लतीफ कहां से आएगा जब आदमी के दिमाग में, ज़हन और दिमाग में खन्नास भरा हुआ है। मगरिबी तहजीब को हमारे नौजवान जो अपने लिए आइडियल और नमूना समझते हैं उनको समझना चाहिए। एक शेर और कहा था अल्लामा इकबाल ने, शाम और फलस्तीन की सरजमीन से सबसे ज्यादा अंबिया किराम वहां मबूस फरमाए गए। उसी के तनाजुर में अल्लामा इकबाल कहते हैं
فرنگیوں کو عطا خاک سوریا نے کیا، سوریا یعنی شام، سیریا، فرنگیوں کو عطا خاک سوریا نے کیا، نبی عفت و غمخواری و کمازاری، صلہ فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لیے، میو قمارو ہجوم زنان بازاری۔ یہ ہجوم زنان بازاری جو ہے یہ اسی تہذیب کی دین ہے کہ آدمی لڑکا اور لڑکی اجنبی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تنہائی میں ملاقاتیں کرتے ہیں، بدکاریوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم کو اپنے مسلمان بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو ان سب چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ان کی نگرانی کی ضرورت ہے کہ وہ مغرب کی تہذیب کے شکار نہ ہونے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان تمام خرافات سے دور رکھے۔ اسی طرح سے جو پہلا موضوع تھا میرا، اس کے تحت کہنا چاہتا ہوں کہ جو شرکیہ اعمال، بدعات و خرافات جو دین کے نام پر ہمارے دین میں داخل ہو گئے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔